Written notes of Science 1, Lesson 4, Effects of Electric Current. Question 1. Tell the odd one out. Give a proper explanation. First one, A क्या है? Fuse wire, bad conductor, rubber gloves, generator. तो odd one out क्या है यहाँ पे? Generator. Reason क्या है? उसका explanation क्या है? It converts mechanical energy to electrical energy. Rest three of them do not. यानी generator जो है वो mechanical energy को electrical energy में convert करता है और बाकी तीन ये नहीं करता. Next B, वोल्ट मीटर, एम मीटर, गैल्वेनोमीटर, थर्मामीटर. ऑड वन आउट क्या है? थर्मामीटर. रीज़न क्या है? इट मेजर्स टेम्परेचर. रिमेनिंग थ्री मेजर्स इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़. और ये मार्च 2020 का बोर्ड एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था. नेक्स्ट वन सी, लाउड स्पीकर, माइक्रोफोन, इलेक्ट्रिक मोटर, मैग्नेट. तो ऑड वन आउट क्या है यहाँ पे? मैग्नेट. रीज़न क्या है? इट एक्सर्ट्स फोर्स ऑन अ मैग्नेटिक मटेरियल. Remaining three converts one form of energy into another. Now question number 2. Explain the construction and working of the following. Draw a neat diagram and label it. तो जो भी आगे क्वेश्चन पूछा है उसका एक्सप्लेनेशन देना है कंस्ट्रक्शन और वर्किंग के बारे में. डायग्राम भी ड्रॉ करना और लेबल भी करना है. तो फर्स्ट वन ए किसके बारे में? इलेक्ट्रिक मोटर. The electric motor consists of rectangular loop ABCD of copper wire having resistive coating. It is placed between the north pole and the south pole of a magnet in such a way that its branches A, B and C, D are perpendicular to the direction of magnetic field. The two ends of the loop are connected to the two awls X and Y of the split ring. The two awls of the ring have resistive coating on their inner surfaces and are tightly fitted on the axle. The two awls of the split ring X and Y have their outer conducting surfaces in contact with the two stationary carbon brushes E and F respectively. अब ये जो डायग्राम है वो पेज नंबर 56 टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 56 में ऑलरेडी दिया है और वर्किंग और कंस्ट्रक्शन इज़ बेस्ड ऑन दिस डायग्राम. तो डायग्राम के बेस के ऊपर ही कंस्ट्रक्शन और वर्किंग का एक्सप्लेनेशन है. नेक्स्ट वर्किंग. व्हेन द सर्किट इज़ completed in the branch AB of the loop from A to B through the carbon brushes E and F, since the direction of the magnetic field is from north pole to south pole according to Fleming's left hand rule, a force is exerted on the branch AB and pushes it down. The current in the CD branch is in a opposite direction to that in the AB branch, and therefore a force is exerted on the branch CD in upward direction. Thus the loop and the axle starts rotating in an anti-clockwise direction. Now after half rotation, the two halves of the split ring X and Y comes in contact with carbon brushes F and E respectively, and the current in a loop starts flowing in the direction DCBA. Therefore, a force is exerted on the branch DC in downward direction and on the branch BA in the upward direction, and the loop continues to rotate in the anti-clockwise direction. Thus, the current in the loop is reversed after each half rotation, and the loop and an axle continues to rotate in the anti-clockwise direction. अब ये कंस्ट्रक्शन डायग्राम वर्किंग सब कुछ पेज नंबर 56 टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 56 में दिया हुआ है. सेकेंड क्वेश्चन दैट इज़ बी. ये किसके बारे में? इलेक्ट्रिक जनरेटर AC. अब ये डायग्राम इट इज़ गिवन इन द टेक्स्ट बुक and the working and construction is based on this diagram. A copper wire coil ABCD kept between two pole pieces of a magnet. The two ends of the coil are connected to the conducting rings R1 and R2 via carbon brushes. Both the rings are fixed to the axle, but there is a resistive coating in between the ring and the axle. The axle is rotated with the help of a machine from outside. Because of this, the coil ABCD starts rotating. The stationary carbon brushes
B1 and B2 are connected to a galvanometer which shows the direction of current in the circuit. Next, working upon rotating the axle, the branch AB goes up and the branch CD goes down. That is, the coil ABCD rotates clockwise. According to Fleming's right-hand rule, electric current is produced in the branches AB and CD in the direction A to B and C to D. Thus, the current flows in the direction A, B, C, D. In the external circuit, the current flows from B2 to B1 through the galvanometer, B2 to B1 through the galvanometer. If instead of one loop coil, a coil consisting of several turns is used, the current of the magnitude several times flows. After half rotation, the branch AB takes the place of branch CD and the branch CD takes the place of branch AB. Therefore, the induced current goes as D to C and from C to B and from B to A. But the branch BA is always in contact with the brush B1 and the branch DC in the contact with B2. Hence, the external circuit current flows from B1 to B2, that is opposite to the previous half rotation. This repeats after every half rotation and ऑल्टरनेटिंग करंट इज़ प्रोड्यूस्ड. अभी डायग्राम जो है वो पेज नंबर 60 यानी इलेक्ट्रिक जनरेटर एसी का डायग्राम पेज नंबर 60 में है और कंस्ट्रक्शन और वर्किंग जो है वो पेज नंबर 59 और 60 में मिल जाएगा टेक्स्ट बुक का. नेक्स्ट वन डायग्राम वही दिया है एग्ज़ाम में यानी जुलाई 2019 में वही डायग्राम इलेक्ट्रिक जनरेटर का डायग्राम दिया था. दैट इज़ दिस डायग्राम वाज गिवन. ये डायग्राम दिया था and you had to look at this diagram and answer the question. So question क्या दिया था? Observe the following diagram. कौन सा diagram था? ये diagram दिया था और and write the answers to the given sub questions. ये जुलाई 2019 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था और ये 5 मार्क के लिए पूछा गया था. तो आंसर क्वेश्चंस क्या था? Which instrument does the above figure show? तो above figure shows which instrument? The answer is electric generator. Question भी क्या पूछा था? Which rule is used to determine the direction of the current produced? तो कौन सा rule इसमें यूज़ किया गया था? Answer is Fleming's right hand rule. थर्ड क्वेश्चन दैट इज C क्या पूछा था? स्टेट द रूल. तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल को स्टेट करना है. तो आंसर क्या है? अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, स्ट्रेच द थंब, the index finger and the middle finger of the right hand in such a way that they will be perpendicular to each other. In this position, the thumb indicates the direction of the motion of the conductor, the index finger the direction of the magnetic field and the middle finger shows the direction of the induced current. और ये जो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल जो है वो पेज नंबर 58 में दिया है. नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन उन लोग ने क्या पूछा था? इन विच डायरेक्शन B1 to B2 or B2 to B1 will the current flow in the external circuit in that situation? तो आंसर क्या है? B2 to B1. तो क्वेश्चन में पूछा था B1 से B2 था कि B2 to B1 था. तो आंसर है B2 to B1. फिफ्थ क्वेश्चन क्या पूछा था? Which change will have to be made in the coil for increasing the current several times without changing the magnet? तो इसका आंसर क्या है? Use a coil of a large number of turns. Observe the above diagram and answer the questions below. ये क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम मार्च 2022 में पूछा गया था और ये 5 मार्क के लिए पूछा गया था. डायग्राम कौन सा दिया था? ये डायग्राम दिया था. दैट इज़ इलेक्ट्रिक जनरेटर एसी का डायग्राम दिया था और यू हैव टू ऑब्जर्व दिस डायग्राम एंड आंसर द क्वेश्चन. तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था? आइडेंटिफाई द अबाउट डायग्राम. ये 1 मार्क के लिए पूछा गया था. तो ये डायग्राम आइडेंटिफाई करना और उसे नेम करना है. तो आंसर क्या रहेगा इसका? इलेक्ट्रिक जनरेटर. सेकेंड क्वेश्चन बी, राइट द प्रिंसिपल ऑन विच द अबाउ अप्लायंसेस वर्क. ये भी 1 मार्क के लिए पूछा गया था और इसका आंसर क्या है? फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल. थर्ड क्वेश्चन दैट इज C, राइट द वर्किंग ऑफ द अबाव अप्लायंसेस. ये 2 मार्क के लिए पूछा गया था और ये जो वर्किंग है जो सेम है क्वेश्चन 2B में इलेक्ट्रिक जनरेटर का जो वर्किंग मैंने अभी एक्सप्लेन किया था वही लिखना है जो पेज नंबर 59 और 60 टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 59 और 60 में दिया है.
क्वेश्चन नंबर 4 दैट इज डी, राइट द यूज ऑफ द अबव अप्लायंसेस। ये भी 1 मार्क के लिए पूछा गया था और इसका आंसर क्या है? इलेक्ट्रिक जनरेटर प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट। क्वेश्चन 3, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मीन्स व्हाट। तो इसका 4 ऑप्शन दिया है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब क्या है? इसका 4 ऑप्शन दिया है, उसमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? चार्जिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक कंडक्टर। नेक्स्ट वन क्या है? प्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट फ्लोइंग थ्रू अ कॉइल। थर्ड वन क्या है? जनरेशन ऑफ अ करंट इन अ कॉइल ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल एंड द मैग्नेट। और फोर्थ वन इज व्हाट? डी, मोशन ऑफ द कॉइल अराउंड द एक्सल इन एन इलेक्ट्रिक मोटर। तो ये चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? सी। तो आंसर क्या है? सी, generation of a current in a coil due to relative motion between the coil and the magnet. Now fourth question क्या है? Explain the difference of AC generator and DC generator. तो आंसर क्या है? AC generator, DC generator. First point of AC generator is what? It is used to produce alternating current. और DC generator का first point क्या है? It is used to produce direct current. Second point of AC generator क्या है? Rings used in an AC generator are not split. और DC generator में क्या है? Split rings are used in a DC generator. AC generator का third point, in the AC generator the flow of current in the circuit reverses the direction after every half rotation of the coil. और DC generator में क्या दिया है? In DC generator the current produced flows in the same direction all the time. ये points पेज नंबर 59 और 60 में मिल जाएगा, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 59 और 60 में। नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन 5, नॉट पॉइंट 5, क्वेश्चन 5, which device is used to produce electricity? Describe with a neat diagram. तो कौन सा डिवाइस यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए? उसके लिए 4 ऑप्शन दिया है, उसका करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है और करेक्ट ऑप्शन ढूंढने के बाद उसे डिस्क्राइब भी करना है विद द हेल्प ऑफ अ नीट डायग्राम। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है? इलेक्ट्रिक मोटर। सेकेंड ऑप्शन क्या है? गैल्वेनोमीटर। थर्ड क्या है? इलेक्ट्रिक जनरेटर डीसी। और फोर्थ वन क्या है? वोल्ट मीटर। तो आंसर करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? सी, इलेक्ट्रिक जनरेटर डीसी। अब इसको डिस्क्राइब करना है विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। तो वर्किंग, the axle is rotated with a machine from outside. When the armature coil of generator rotates in the magnetic field, electric potential difference is produced in the coil due to electromagnetic induction. This produces a current as shown by the glowing of the bulb or by a galvanometer. The direction of the current depends on the rotation of the coil. In a DC generator, one brush is always in contact with the arm of the coil moving up, while the other brush is in contact with the arm of the coil moving down in the magnetic field. Hence, the flow of the current in the circuit is always in the same direction and the current flows so long as the coil continues to rotate in the magnetic field. और डायग्राम भी ड्रॉ करना है, तो उसका डायग्राम इस तरह है, which is not given in the textbook. So this is how we are supposed to draw the diagram of electric generator DC. Question number 6. How does short circuit form? What is its effect? तो आंसर क्या है? The home electrical connection consists of live, neutral and earth wires. The live and the neutral wire have potential difference of 220 volts. The earth is connected to the ground. Due to a fault in the equipment, or if the plastic coating on the live and the neutral wire gives way, the two wires come in contact with each other and a large current flows through it, producing heat. If any inflammable material such as wood, cloth, plastic etc. exist around that place, it can catch fire. अब ये जो आंसर है टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 49 में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, गिव साइंटिफिक रीजंस। उसका फर्स्ट क्वेश्चन ए क्या है? टंगस्टन मेटल इज यूज टू मेक अ सोलेनॉइड टाइप कॉइल इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब। द आंसर फर्स्ट पॉइंट क्या है? इलेक्ट्रिक बल्ब मेक यूज ऑफ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट।
Second point, electrical conductor having high resistivity such as tungsten wire is used in electric bulb. Third point, because of the current, tungsten wire gets heated to nearly 3400 degrees Celsius without melting it and emits light. ये आंसर जो है टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 49 में मिल जाएगा. नेक्स्ट सेकेंड वन, that is B. In the electric equipment producing heat, example iron, electric heater, boiler, toaster, etc. an alloy such as nichrome is used, not pure metal. तो ये सब जो इक्विपमेंट है जिसमें जैसे कि इलेक्ट्रिक हीटर, आयरन, बॉयलर, टोस्टर में निक्रोम दैट इज़ एन एलॉय इज़ यूज्ड, प्योर मेटल नहीं यूज़ किया जाता है. तो इसका आंसर क्या है? First point, equipment such as iron, boiler, etc. make use of the heating effect of electric current. Second point, electrical conductors having high resistivity are used here. Third point, therefore, nichrome, which is an alloy, is used in iron, electric heater, boiler, toaster, etc. and not pure metals. ये भी आंसर जो है टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 49 में मिल जाएगा. और ये मार्च 2019 का बोर्ड एग्ज़ाम और जुलाई 2019 का बोर्ड एग्ज़ाम दोनों बार ये क्वेश्चन पूछा गया था. नेक्स्ट वन सी. For electric power transmission, copper or aluminum wire is used. So answer first point, copper and aluminum are good conductors of electricity. Second point, copper and aluminum have very low resistivity. Hence, when current flows through it, heat produced is comparatively low. Third point, therefore for electric power transmission, copper or aluminum wire is used. Next question, that is D. In practice, the unit kilowatt hour is used for the measurement of electrical energy rather than joule. तो आंसर इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है? Joule is a very small unit and the energy consumption in a day-to-day life is very large. Second point, 1 kilowatt hour, that is 1 kilowatt hour is equal to 1000 watt into 3600 second, that is equal to 3.6 into 10 to the power of 6 joules, यानी 3, 6 और 5 0 joules रहता है. तो that is a very big number. The third point क्या है? Hence in practice the unit kilowatt hour is used for the measurement of electrical energy rather than joules, as kilowatt hour is a bigger unit than joules. Question number 8. Which of the statement given below correctly describes the magnetic field near a long straight current carrying conductor? Option A क्या दिया है? The magnetic line of forces are in plane perpendicular to the conductor in form of straight line. Second option B क्या दिया है? The magnetic lines of force are parallel to the conductor on all sides of the conductor. और ऑप्शन सी क्या दिया है? The magnetic lines of force are perpendicular to the conductor going radially outward. और ऑप्शन डी क्या दिया? The magnetic lines of force are in concentric circles with the wire as the center in a plane perpendicular to the conductor. तो आंसर करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन डी. Answer option D is the right answer. The magnetic lines of force are in concentric circles with the wire has the center in a plane perpendicular to the conductor. Question number 9. What is a solenoid? And compare the magnetic field produced by a solenoid with the magnetic field of a bar magnet. Draw neat figures and name various components. Answer first point, when a copper wire with a resistive coating is wound in a chain of loops like a spring, it is called a solenoid. Second point, the properties of the magnetic field of a solenoid are very similar to the magnetic field produced by a bar magnet. One of the open ends of a solenoid acts as a magnetic north pole and the other has the magnetic south pole. और ये जो डायग्राम है और नोट्स जो है, आंसर जो है वो पेज नंबर 54 में दिया है. सो दिस इज़ द डायग्राम ऑफ सोलोनॉइड जो पेज नंबर 54 में है टेक्स्ट बुक का. और ये बार मैग्नेट का डायग्राम है जो लास्ट ईयर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. तो नोट्स जो आंसर्स है और ये डायग्राम जो सोलोनॉइड का है, यू विल गेट इट ऑन पेज नंबर 54. क्वेश्चन नंबर 10. नेम द फॉलोइंग एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट बिहाइंड देम. तो डायग्राम्स दिया है टेक्स्ट बुक में
और ये ए और बी दो डायग्राम है और इसे नेम करना है और उसे एक्सप्लेन भी करना है। तो फर्स्ट वन ए क्या है, व्हाट इज़ दिस डायग्राम, व्हाट डज इट डिनोट, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। अभी इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, स्ट्रेच द थंब, द इंडेक्स फिंगर एंड द मिडल फिंगर ऑफ द राइट हैंड in such a way that they are perpendicular to each other. In this position, the thumb indicates the direction of the motion of the conductor, the index finger the direction of the magnetic field, and the middle finger shows the direction of the induced current. अब ये जो सेकेंड डायग्राम है वो डायग्राम किसके बारे में है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अभी फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को एक्सप्लेन करना है। द लेफ्ट हैंड थंब, index finger, the middle finger are stretched so as to be perpendicular to each other. If the index finger is in the direction of the magnetic field and the middle finger points in the direction of the current, then the direction of the thumb is the direction of the force on the conductor. तो फर्स्ट वाला जो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल है वो पेज नंबर 58, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 58 में मिलेगा, और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल जो है वो टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 55 में मिलेगा। अभी ये जो क्वेश्चन है वो इट इज़ रिलेटेड टू फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल ओनली, बट ये जो है वो मार्च 2020 का बोर्ड एग्जाम में पूछा था। तो दे हैड ड्रॉन द डायग्राम दिस, 3 एरो बनाया था, फर्स्ट एरो ऑलरेडी इंडिकेट किया था दिस इज़ अ मोशन ऑफ अ कंडक्टर। तो ये वाला ए और बी यानी ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन क्या बताता है, दैट वी हैव टू शो, दैट मीन्स इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर व्हाट डज इट डिनोट। तो आंसर क्या आएगा, तो क्वेश्चन उन लोग ने क्या पूछा था, ऑब्जर्व द गिवन फिगर ऑफ फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल एंड राइट द लेबल्स ऑफ ए एंड बी करेक्टली। तो ए क्या है और बी क्या है वो लिखना है। तो व्हाट इज़ ए इज़ द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड और बी क्या है, बी इज़ डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट। ये कभी पूछा था बोर्ड एग्जाम में, मार्च 2020 में पूछा था बोर्ड एग्जाम में, और 2 मार्क के लिए पूछा था। ए लिखने के लिए 1 मार्क था और बी लिखने के लिए और 1 मार्क था, तो दोनों मिला के 2 मार्क्स के लिए पूछा था। अभी मार्च 2022 में ये डायग्राम दिया था और ये तीनों एरोस बताया है। फर्स्ट एरो ऑलरेडी उन लोग ने लिख के बताया कि फोर्स ऑन द कंडक्टर, और ए सेकंड और थर्ड बताना है, यानी इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर क्या डिनोट करता है वो बताना है। सो यू हैव टू फाइंड राइट व्हाट इज़ ए एंड व्हाट इज़ बी। तो ए और बी के उधर बॉक्स ड्रॉ किया विच यू हैव टू फिल इट अप। तो ऑब्जर्व द गिवन फिगर ऑफ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल एंड राइट द लेबल्स ऑफ ए एंड बी। तो ए एंड बी यू हैव टू डिनोट। सो व्हाट इज़ ए क्या है, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, और B क्या है, डायरेक्शन ऑफ द करंट। सो A इज़ व्हाट, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एंड B इज़ व्हाट, डायरेक्शन ऑफ करंट। ये कब कौन से ईयर में पूछा गया था, मार्च 2022 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था फॉर 2 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 11, 3 फिगर दिया है 1 2 3 दैट इज़ ए बी सी। इसे आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई द फिगर्स एंड एक्सप्लेन देयर यूसेस। तो ये जो फिगर दिया है उसे आइडेंटिफाई करना है और उसका यूज़ भी लिखना है। तो ए क्या है, ए इज़ व्हाट, फ्यूज़। अभी फ्यूज़ का यूज़ क्या है, फ्यूज़ इज़ यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट टू प्रोटेक्ट द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस फ्रॉम डैमेजिंग ड्यू टू शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग। अभी बी क्या है, बी जो फिगर दिया है व्हाट इज़ दैट, B is miniature circuit breakers MCB switches। तो miniature circuit MCB switches का यूज़ क्या है, miniature circuit breakers MCB switches are used in homes when the current in the circuit suddenly increases, this switch opens and the current stops। अभी थर्ड जो फिगर है C जो है, what is C, ये फिगर क्या है, आइडेंटिफाई दिस। व्हाट इज़ दिस फिगर, डीसी जनरेटर। अभी डीसी जनरेटर का यूज़ क्या है, डीसी जनरेटर इज़ यूज टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट करंट। क्वेश्चन नंबर 12, सॉल्व द फॉलोइंग एग्जाम्पल। फर्स्ट वन दैट इज़ ए, heat energy is being produced in a resistance in a circuit at the rate of 100 watt. The current of 3 ampere is flowing in the circuit. What must be the value of the resistance? तो resistance का वैल्यू ढूंढना है। अभी क्या दिया है, पावर दिया है, पावर इज इक्वल टू हाउ मच, 100 वाट, 100 वाट दिया है, और करंट भी दिया है, करंट इज डिनोटेड एज आई इज इक्वल टू व्हाट, 3 एम्पियर, और रेजिस्टेंस ढूंढना है, वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ढूंढना है। तो फॉर्मूला क्या है,
P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, दैट इज P के जगह में क्या डालना है 100, दैट इज इक्वल टू I के जगह में क्या डालना है 3, तो I स्क्वायर है तो 3 स्क्वायर इंटू आर। ना ये 3 स्क्वायर को 100 के नीचे लेके आओ तो R इज इक्वल टू व्हाट 100 अपॉन 3 स्क्वायर, दैट इज 3 इंटू 3, दैट इज इक्वल टू हाउ मच 100 अपॉन 9। अभी 100 को 9 से डिवाइड करो तो व्हाट यू विल गेट 11.11 ओम्स। इट इज़ अ रिकरिंग नंबर, तो 100 को 9 से डिवाइड करेंगे तो व्हाट यू विल गेट 9 1s are 9, रिमाइंडर 1, ब्रिंग डाउन द 0, अगेन इट विल गो इन 1's टेबल 9, अगेन 1 आएगा, पॉइंट डाल के 0 डालो, अगेन इट विल गो इन 1's टेबल, वापस 1 आएगा, पुट अ 0, तो इट विल गो ऑन रिपीटिंग। तो 11.11 ओम्स, तो R इज इक्वल टू हाउ मच, अप्रॉक्सीमेटली इज इक्वल टू 11 ओम्स। द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज हाउ मच 11 ओम्स, नहीं तो 11.11 भी 11.11 भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज B, 2 tungsten bulbs of wattage 1000 watt and 60 watt power works on 220 volts potential difference. If they are connected in parallel, how much current will flow in the main conductor? क्वेश्चन में क्या दिया था, 2 tungsten bulbs of wattage 100 watts and 60 watts power work on 220 potential difference. तो 2 bulbs है, let us denote the power of the first bulb as P1, तो P1 इज इक्वल टू कितना दिया था 100 वॉट्स, और सेकेंड बल्ब का पावर को वी विल डिनोट दैट एज P2, और P2 का सेकेंड बल्ब का पावर कितना है 60 वॉट्स, और पोटेंशियल डिफरेंस दिया है दैट इज V इज इक्वल टू हाउ मच 220 वॉट्स, और करंट फाइंड आउट करने का है हाउ मच करंट विल फ्लो इन द मेन कंडक्टर, तो हाउ मच करंट विल फ्लो दैट वी हैव टू फाइंड आउट। तो I इज इक्वल टू वॉट P अपॉन V। अभी बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल, दोनों भी बल्ब कैसे कनेक्टेड है, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो I1 लेट अस कंसिडर कि जो करंट फर्स्ट बल्ब में पास होता है उसका करंट को लेट अस डिनोट दैट इज I1, तो I1 इज इक्वल टू व्हाट P1 अपॉन V। उसी तरह सेकेंड बल्ब में जो करंट फ्लो होता है लेट अस डिनोट दैट इज I2, तो I2 इज इक्वल टू हाउ मच P2 अपॉन V। सिंस बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल, सो I इज इक्वल टू व्हाट I1 प्लस I2, तो I इज इक्वल टू व्हाट P1 अपॉन V प्लस P2 अपॉन V। I1 क्या था P1 अपॉन V, तो I1 के जगह में P1 अपॉन V लिखना है, प्लस I2 के जगह में क्या लिखना है P2 अपॉन V। तो I इज इक्वल टू व्हाट, अभी डिनोमिनेटर दोनों जगह V है, सो वी हैव टू राइट डाउन ओनली वन, सो I इज इक्वल टू व्हाट P1 प्लस P2 अपॉन V। अभी P1 कितना था, P1 वॉज 100 एंड P2 वॉज 60, तो I इज इक्वल टू 100 प्लस 60 अपॉन V कितना था, V इज इक्वल टू 220 वोल्ट्स, तो अपॉन 220। अभी इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, 100 प्लस 60 इज हाउ मच 160 अपॉन 220। ये दोनों ज़ीरो कट होगा, 2 के टेबल में जाएगा, 2 8 ज़ा 16, 2 11 ज़ा 22, तो 8 अपॉन 11 मिला ना। इफ़ यू डिवाइड 8 बाई 11, तो 8 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 8 विल नॉट गो इन 11 टेबल, तो पॉइंट डाल के 0 डालो, 11 7 ज़ा 77, बचा कितना 3, नाउ पुट 1 मोर 0, 11 2 ज़ा 22, अगेन 8 आएगा, तो 8 में वापस 0 डालेंगे तो 7 आएगा। सो दिस इज़ अ रेकरिंग नंबर, 0.727272 ऐसे ही आएगा। तो I इज इक्वल टू हाउ मच, तो कैंसिलेशन करने के बाद I इज इक्वल टू हाउ मच 0.727 एम्पियर। अभी 0.727, फिर पॉइंट के बाद 2 नंबर बस हो गया, तो ये थर्ड नंबर को हटाना है। अभी थर्ड नंबर हटाने से पहले ये देखना है कि ये नंबर जो 7 जो है वो 5 से छोटा है कि 5 से बड़ा है, तो 7 इज़ बिगर देन 5, तो ये जो 2 है सिंस इट इज़ बिगर देन 5, तो ये 2 एक नंबर से बढ़ जाएगा, दैट मीन्स 2 विल बिकम 3, तो आंसर क्या रहेगा 0.73 एम्पियर्स। तो 0.73 amperes of current will flow in the main conductor. Now C, that is third question, who will spend more electrical energy, 500 watts TV set in 30 minutes or 600 watts heater in 20 minutes?
तो कौन सा ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ किया, टीवी सेट ने जो 500 वॉट्स का है और 30 मिनट के लिए चलाया था, कि हीटर है, हीटर का पावर कितना है 600 वॉट्स और वो कितना देर तक चलाया था 20 मिनट्स के लिए। नाउ लेट अस फाइंड आउट फर्स्ट ऑफ टीवी सेट। टीवी सेट का पावर कितना दिया है 500 वॉट्स और कितना देर के लिए चलाया था 30 मिनट्स के लिए। लेट अस कन्वर्ट दिस इनटू सेकेंड, तो 30 इंटू 60, 30 इंटू 60 इज हाउ मच 1800 seconds. Now heat energy is equal to what, P into T. पावर कितना है 500 into टाइम कितना मिला था 1800. When you multiply this you will get what, 900,000 joules. Now convert this into power, that is 9 into 10 to the power of कितना ज़ीरो है 1 2 3 4 5, तो 10 to the power of 5 joules. तो कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी was spent for TV set, 9 into 10 to the power of 5 joules. Let us denote that as E1. Heat energy of TV set, let us denote that as E1. Next we will find out of heater. हीटर का पावर कितना दिया है 600 वॉट्स और वो कितना देर के लिए चलाया था 20 मिनट्स के लिए। तो हीटर का पावर कितना है 600 वॉट्स और कितना देर के लिए चलाया था 20 मिनट्स। सो कन्वर्ट दिस मिनट्स इनटू सेकेंड्स, दैट इज 20 इंटू 60, 20 into 60 is equal to how much, 1200 seconds. Now heat energy of heater, कितना heat energy heater के लिए spend हुआ था, let us denote that as E2. तो E2 is equal to P into T. P कितना है 600 और T कितना मिला था 1200 second. When you multiply this, what you get, 720,000 joules. Now convert this into power. तो 7 के बाद पॉइंट डालना है 7.2, तो मैंने 0.7 के बाद डाला है, तो इसके बाद नंबर्स गिनना है। तो पॉइंट के बाद क्या कितना नंबर्स है वो गिनना है, 1 2 3 4 5, सो इंटू 10 to the power of 5 joules. अभी टीवी सेट के लिए कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्पेंड हुआ था 9 इंटू 10 to the power of 5 joules, और हीटर के लिए कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्पेंड हुआ था 7.2 इंटू 10 to the power of 5 joules. तो किसने ज़्यादा यूज़ किया है टीवी सेट। तो आंसर में क्या आएगा, टीवी सेट विल स्पेंड मोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी देन हीटर। ये जो क्वेश्चन है वो सितंबर 2021 के बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा गया था। Now sum number 4, that is D. An electric iron of 1100 watts is operated for 2 hours daily. What will be the electrical consumption expenses for that in the month of April? The electrical company charges ₹5 per unit of energy. तो एक इलेक्ट्रिक आयन है, यानी जो इस्त्री होता है वो, उसका वोल्टेज कितना, पावर कितना है 1100 वॉट्स, और हर दिन रोज़ कितने घंटे के लिए यूज़ किया जाता है 2 घंटे के लिए। तो अप्रैल महीने में उसका चार्ज कितना रहेगा वो फाइंड आउट करना है। तो पावर ऑफ द इलेक्ट्रिक आयन इज़ हाउ मच 1100 वॉट्स। कन्वर्ट दैट इनटू, ये वॉट्स है तो किलो वॉट्स में कन्वर्ट करना है, तो 1100 अपॉन 1000 डिवाइड करना है 1000 से, 2 0 कट हो गया, तो 11 अपॉन 10 है, यानी आंसर कितना रहेगा 1.1 किलो वॉट। 1 0 है तो एक नंबर के बाद पॉइंट डालना, तो 1.1 किलो वॉट। और कितना रोज़ कितने घंटे के लिए यूज़ किया जाता है 2 घंटे के लिए। सो एनर्जी कंज्यूम्ड विल बी इक्वल टू व्हाट, P इंटू टी। सो एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 डे इज़ हाउ मच 1.1 इंटू 2, so that is equal to how much 2.2 kilowatt hour. अभी नंबर ऑफ डेज इन अप्रैल, उन लोग ने क्वेश्चन में क्या पूछा है, अप्रैल महीने में कितना चार्ज होगा वो ढूंढने को कहा है। तो नंबर ऑफ डेज इन अप्रैल कितना है 30, तो एनर्जी कंज्यूम्ड इन द मंथ ऑफ अप्रैल इज हाउ मच 2.2 इंटू 30. व्हेन यू मल्टीप्लाई दिस यू विल गेट व्हाट 0.0, रिमूव द पॉइंट के बाद 0 तो उसे निकाल दो, तो आंसर क्या रहेगा 66 किलो वॉट आवर। नाउ चार्ज ऑफ 1 यूनिट ऑफ एनर्जी कितना है ₹5, देयरफॉर चार्ज ऑफ 66 यूनिट विल बी हाउ मच 66 इंटू 5, दैट इज इक्वल टू हाउ मच ₹330। तो एंड में आंसर लिखना है कि मंथ ऑफ अप्रैल में कितना चार्ज होगा। द कंजम्पशन
वॉज हाउ मच 66 किलोवाट आवर। तो मंथ ऑफ अप्रैल में कितना चार्ज आएगा, ₹330। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आस्क्ड इन द बोर्ड एग्जाम फ्रॉम लेसन 4। तो लेसन 4 साइंस 1 का लेसन 4 जो है इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसमें एक्सरसाइज में से जो बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था दैट वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड, और उसके अलावा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस क्या पूछा गया था बोर्ड एग्जाम में, लेट अस डिस्कस अबाउट दैट। द फर्स्ट वन, ऑब्जर्व द फॉलोइंग डायग्राम एंड चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। तो करेक्ट ऑल्टरनेटिव ढूंढना है 4 ऑप्शन में से। इसमें 2 डायग्राम दिया है, एक तो है डायग्राम ए और दूसरा है डायग्राम बी। अभी डायग्राम ए में इफ़ यू सी, ये जो दोनों रेजिस्टेंस है वो सीरीज़ में कनेक्टेड है, इसके लिए इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो करंट इसमें कम रहेगा और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी कम रहेगा। और अगर बी में देखेंगे तो ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है, इसके लिए इसमें करंट जो है वो ज़्यादा रहेगा और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी ज़्यादा रहेगा। अभी जो ऑप्शंस दिया है इट इज़ बेस्ड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो अभी मैंने बताया था कि इसका इंटेंसिटी जो डायग्राम ए है उसका जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है इसमें कम है, और डायग्राम बी में जो है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इसमें ज़्यादा है। सो लेट अस सी द ऑप्शन एंड फाइंड आउट विच वन इज़ द करेक्ट वन। Option A, the intensity of magnetic field in A is larger than that in B. Option B, the intensity of magnetic field in B is less than that in A. Third one, that is C, the intensity of magnetic field in A and B is same. और fourth one, that is D क्या है, the intensity of magnetic field in A is less than that in B. तो correct option कौन सा रहेगा, D. So D is the right answer. The intensity of magnetic field in A is less than that in B. ये बोर्ड एग्ज़ाम मार्च 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। Now next one, second one, ये भी choose the correct alternative है। क्या दिया है इसमें, when an electric current is passed through a solenoid it shows magnetic lines of force similar to a dash। तो ऑप्शन क्या दिया था, ए बार मैग्नेट, बी हॉर्सशू मैग्नेट, सी डिस्क मैग्नेट, डी स्फेरिकल मैग्नेट। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ए बार मैग्नेट। और ये ब्लैंक में भी बार मैग्नेट लिखना है। ये कौन सा ईयर में पूछा गया था, जुलाई 2019 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। थर्ड क्वेश्चन, चूज अ करेक्ट ऑल्टरनेटिव। दिस इज ऑल्सो चूज अ करेक्ट ऑल्टरनेटिव। इसमें क्या दिया है, इफ आई इज अ करंट flowing continuously through the circuit, the heat produced in the resistor R in time t will be what, dash। ऑप्शन क्या दिया है, ए IRT, बी IR2T, सी I2RT और डी क्या है, IRT²। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी, दैट इज I2RT। तो ब्लैंक में भी I2RT लिखना है। ये सितंबर 2021 का बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट वन, फोर्थ वन, state a true or false, an electric motor converts mechanical into electrical energy। ये false statement है, ये उल्टा रहना चाहिए। the electric motor converts electrical energy into mechanical energy। ये मार्च 2022 में पूछा गया था। नेक्स्ट वन, फिफ्थ, ये भी ट्रू और फॉल्स है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ AC इज़ 50 हर्ट्ज। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है, ये मार्च 2020 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट वन, ऑब्जर्व द डायग्राम्स एंड आंसर द क्वेश्चंस। ये 5 मार्क के लिए पूछा गया था। क्वेश्चन 6 में ये 2 डायग्राम्स दिया और ये 2 डायग्राम्स जो है टेक्स्ट बुक में भी है, पेज नंबर 51 में है। और ये AB जो है वो कंडक्टर है और ये मैग्नेटिक निडल है जो कंडक्टर के सामने रखा हुआ है। जब करंट इसमें से पास होता है तो ये मैग्नेटिक निडल विल गेट डिफ्लेक्टेड। तो यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन लुकिंग एट दिस डायग्राम। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, विच इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज शोन इन द अबव फिगर। तो आंसर क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट विल हैपन इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक सेल इज इंक्रीज्ड ऑन द मैग्नेटिक निडल। तो ये सेल है, अगर ये नंबर ऑफ सेल्स बढ़ा देंगे तो व्हाट will you see, what will happen if the number of electric cell is increased on the magnetic field। तो यानी नंबर ऑफ सेल जब बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड में क्या चेंजेस देखेंगे। तो आंसर क्या है, द डिफ्लेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक निडल विल इंक्रीज, यानी करंट बढ़ेगा तो डिफ्लेक्शन भी बढ़ जाएगा मैग्नेटिक निडल का। सी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द कंडक्टर एंड द मैग्नेटिक निडल इज इंक्रीज,
व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो क्वेश्चन में पूछा है, ये है कंडक्टर, ए बी कंडक्टर है और ये मैग्नेटिक निडल है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर बढ़ा देंगे यानी मैग्नेटिक निडल को थोड़ा पीछे रखेंगे तो व्हाट विल यू सी, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो आंसर क्या है, द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल डिक्रीज। तो जैसे जैसे दूर रखेंगे कंडक्टर से तो मैग्नेटिक फील्ड का जो इंटेंसिटी है वो कम कम होते जाएगा एंड हेंस द डिफ्लेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक निडल विल डिक्रीज। तो मैग्नेटिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो गया तो मैग्नेटिक निडल जो है वो कम डिफ्लेक्ट होगा। फोर्थ क्वेश्चन, इफ द एंड्स ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल्स आर इंटरचेंज व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर ये एंड्स है, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, करंट इज फ्लोइंग दिस वे, और अगर उसको इंटरचेंज कर दिया, यहाँ पे माइनस रखा और यहाँ पे प्लस रखा तो करंट जो है वो ऐसा फ्लो होगा। तो जब ये इलेक्ट्रिक सेल्स को इंटरचेंज करेगा तो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन दिस मैग्नेटिक निडल। So what's the answer? The magnetic needle will be deflected in the opposite direction, that is in opposite sense. Fifth question, write the names of any two instruments which work on the magnetic effect of electric current. तो आंसर क्या है, इलेक्ट्रिक मोटर और इलेक्ट्रिक बेल, और ये नवंबर 2020 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। अभी मैंने बताया था, दो डायग्राम दिखाया था, वो पेज नंबर 51 में है। नाउ सेवेंथ क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट। ये 2 मार्क के लिए पूछा गया था। ऑल्टरनेटिंग करंट, डायरेक्ट करंट। फर्स्ट पॉइंट ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट इज व्हाट, ऑल्टरनेटिंग करंट flows in periodic manner in one half cycle. It flows in one direction and in the other half cycle it flows in the opposite direction. और डायरेक्ट करंट में क्या रहेगा, फर्स्ट पॉइंट, डायरेक्ट करंट flows in one direction. सेकेंड पॉइंट, it can be transmitted over a long distance. तो alternating current can be transmitted over a long distance और direct current में it cannot be transmitted over a long distance. ये नवंबर 2020 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 8, गिव साइंटिफिक रीज़न। ये 2 मार्क के लिए पूछा गया था। It is necessary to connect earth wires in home electric connection. तो आंसर क्या है, फर्स्ट पॉइंट, a metallic body of high power rating electrical equipment is earthed by ground wire that protect us from electric shocks to the user. Second point, it is necessary to connect earth wires in home electric connection so that any leakage of electric current is transferred to the ground. ये मार्च 2022 का बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, रीड द गिवन पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये 3 मार्क के लिए पूछा गया था। ये जो पैसेज रीड करना है एंड यू हैव टू आंसर द क्वेश्चंस विच इज़ आस्क्ड आफ्टर द पैसेज। तो पैसेज जो है वो पेज नंबर 49 में है। पैसेज कहाँ से स्टार्ट होता है, द होम इलेक्ट्रिकल कनेक्शन से लेके प्रिकॉशनरी मेजर्स, तो यहाँ से लेके यहाँ तक है, प्रिकॉशनरी मेजर्स तक है। तो दिस वाज अ पैसेज विच इज गिवन इन द बोर्ड एग्जाम एंड यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या पूछा था, फर्स्ट वन, नेम द 2 वायर्स हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 220 वोल्ट। तो आंसर क्या है, द लाइव and the neutral wires have potential difference of 220 volts. Next question, that is B, what is a short circuit? तो आंसर क्या है, due to fault in the equipment or if the plastic coating on the live and the neutral wires give way, the 2 wires come in contact with each other and a large current flows through it producing heat and which causes fire. So this is known as a short circuit. Question C, write the function of fuse. Answer क्या है, this you have already studied last year about fuse. तो आंसर क्या है, as soon as high current, that is if current larger than the specified value flows in a circuit, the fuse wire melts and breaks the circuit and any mishap is avoided. ये तीनों क्वेश्चन जो है वो मार्च 2020 में पूछा गया था।
पैसेज दिया था, पैसेज को रीड करके यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन. ओनली द लास्ट वन वाज नॉट दैट विच यू शुड नो. दैट वाज ऑलरेडी गिवन इन द टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 49 में ये आंसर मिल जाएगा. सो दिस आंसर इज़ गिवन इन पेज नंबर 49. इन द एंड इट इज़ गिवन. लेकिन पैसेज जो दिया था उसमें ये पार्ट नहीं था, तो यू शुड नो दिस बाय हार्ट. तो ये मार्च 2020 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. Two tungsten bulbs of power 50 watts and 60 watts work on 220 volt potential difference. If they are connected in parallel, how much current will flow in the main conductor? अभी ये 2 मार्क के लिए पूछा गया था. Now if you see the question में क्या दिया है, 2 tungsten bulbs, एक का पावर कितना है 50 वोल्ट. So let us denote the first bulb, tungsten bulb, पावर विथ P1. तो पहला जो बल्ब है उसका पावर को P1 से डिनोट करता है. उसका पावर कितना है 50 वोल्ट, नॉट वोल्ट, वॉट. और सेकेंड बल्ब का वॉट कितना, पावर कितना है 60 वॉट. तो लेट अस डिनोट द पावर ऑफ द सेकेंड बल्ब एज P2. तो P2 इज इक्वल टू हाउ मच 60 वॉट. नेक्स्ट वन, work on 220 volt potential difference. So potential difference V is equal to how much 220 volt. और ढूंढना क्या है करंट, हाउ मच करंट विल फ्लो इन द मेन कंडक्टर. ना फॉर्मूला क्या है, P इज इक्वल टू V इंटू आई. तो I ढूंढना है, करंट ढूंढना है, तो V को P के नीचे लेके आओ. तो I इज इक्वल टू व्हाट P अपॉन V. Now we had got what I is equal to P upon V. तो I1 कितना रहेगा, I1 is equal to P1 upon V. और I2 कितना है P2 upon V. अभी P1 कितना दिया था, P1 they had given 50 watt, P2 they had given how much 60 watt. और potential difference V they had given how much 220 volt. So let us substitute that over here. Now the two bulbs, question में दिया था कि दोनों bulbs are connected in parallel. So I is equal to I1 plus I2. I is equal to what, I1 क्या मिला था P1 upon V. और I2 क्या है P2 upon V. दोनों में denominator V है, so that will come common. So that is P1 plus P2 upon V. So that's equal to how much, P1 कितना है, P1 is 50 watt and P2 is 60 watt. So 50 plus 60 upon V is how much, V is equal to 220. So 50 plus 60 upon 220. Therefore I is equal to how much, 50 plus 60 is how much 110 अपॉन 220. 0 और 0 कैंसिल हो जाएगा, दोनों 11 के टेबल में जाता है. 11 1 ज़ा 11 2 ज़ा 22. सो I इज़ इक्वल टू 1 अपॉन 2 एम्पियर. व्हेन यू डिवाइड 1 बाई 2 व्हाट यूल गेट 0.5 एम्पियर. सो आंसर क्या है, 0.5 एम्पियर ऑफ करंट विल फ्लो इन द मेन कंडक्टर. ये जो क्वेश्चन है वो मार्च 2019 के बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा गया था.